নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ বিএম। শুরু করছি আজকের বিশেষ সংবাদ। ভারতের সংবিধান হত্যা দিবস 50 বছর পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে 25শে জুন সংবিধানের হত্যা ও জরুরি অবস্থা লাগু করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সংবিধান হত্যা দিবস কর্মসূচি নেওয়া হয় সারা ভারতবর্ষব্যাপী। আর সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল কলকাতার সল্টলেকে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন যে জরুরি অবস্থা জারি করার ফলে সাধারণ নাগরিকদের বিনা দোষে জোর করে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে নেওয়া হয়েছিল, সংবাদ মাধ্যমের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, যার কারণে সাধারণ মানুষ ভোটে জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন স্বৈরাচারী কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটিয়ে। তিনি আরও বলেন, বাবা সাহেব আম্বেদকর যখন সংবিধান লিখেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন আর্টিকেল 32 সংবিধানের আত্মা ছিল, সেইটাকেও বাদ দিয়েছিলেন না সেই স্বৈরাচারী সরকার। 31 মাস ধরে সারা দেশের মানুষ অনেক কিছু সহ্য করেছিল। এই দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পশ্চিমবাংলার ল কলেজে ঘটে যাওয়া গ্যাংরেপের বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে পশ্চিমবাংলায় যে তৃণমূলের সরকার চলছে তার সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আছেন মমতা ব্যানার্জি। তিনি তুষ্টিকরণের রাজনীতি করেন বলে অভিযোগ করেন, আর সেই কারণে যারা অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, আর তাই অপরাধীদের মধ্যে কোনো রকম ভয় থাকে না। তিনি অভিযোগ করে বলেন যে পশ্চিমবাংলার প্রকৃত অপরাধীদের কোনো সাজা না হওয়ার কারণে তারা আরও বেশি করে অপরাধ করে, কেননা তারা জানে যে তাদের মাথার উপর মমতা ব্যানার্জির ছাদ আছে, কোনো না কোনোভাবে তাদের শেল্টার দিয়ে দেন তিনি। তাই বারবার এমন ঘটনা ঘটে বা ঘটতেই থাকে এবং পশ্চিমবাংলার মান সম্মান সারা দেশের কাছে শেষ হয়ে যায়। এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের বিজেপির পক্ষ থেকে আন্দোলন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমে তিনি মমতা ব্যানার্জির দিকে আঙুল তুলে বলেন যে কেন এই ঘটনাগুলি ঘটছে। আরজি করের বিষয়টিও তিনি এই দিন বলেন। তিনি আরও কিছু বলেন যে অপরাধীদের বিষয়ে মমতা ব্যানার্জির সরকার যদি কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেয় তাহলে ভোট ব্যাংক নষ্ট হয়ে যাবে, তাই তিনি কোনো ব্যবস্থা নেন না অপরাধীদের বিরুদ্ধে। রাজ্যে এইভাবে চলতে পারে না, আইনের নিয়মের উপরেই তো আইনের শাসন চলে, আর যদি সেই নিয়ম না মানা হয় তবে এমন ঘটনা ঘটবেই। আমরা সব রকমভাবে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাব লাগাতারভাবে। শুধু গ্রেপ্তার করলেই হবে না, আসলে কলেজের ভেতরে কি ঘটনা ঘটেছিল পুরো বিষয় সকলের সামনে আনতে হবে ও আইনের শাসন চালু করতে হবে, তবেই পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ নিরাপদ থাকবে, এমনটাই দাবি করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। 356 ধারার ও বেশ কিছু নিয়ম আছে। তিনি এই দিন অভিযোগ করে বলেন যে পশ্চিমবাংলায় অঘোষিতভাবে জরুরি অবস্থাই চলছে, এমনটাও অভিযোগ করেন তিনি। पहले मैं 5 मिनट उसके बारे में वार्ता करना चाहता हूं आपसे, फिर आपका जो सवाल है उसका भी मैं जवाब दूंगा। इस देश में इमरजेंसी लगी 25 जून 1975, 50 साल पूरे हो गए। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोग्राम हाथ में लिया है कि हम इस 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगी थी, तो 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। इट वाज ए मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके लिए हमने पूरे देश में कार्यक्रम निर्धारित किए। यहाँ का कार्यक्रम 27 जून को निर्धारित था, लेकिन वो आज 28 जून को हो रहा है। तो ये जो संविधान हत्या दिवस है उसी का एक कार्यक्रम आज हमने यहाँ किया। जो हमारे गणमान्य नागरिक आए थे उनके सामने भी इमरजेंसी क्यों लगी, किन परिस्थितियों में लगी, क्यों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में ठूंस दिया गया। तो जिनको जो लोग जेलों में ठूंस दिए गए बिना किसी कारण के, उनका या उनके परिवार के जो जन थे उनको हमने आज
सम्मानित भी किया कि आपके कारण लोकतंत्र जिंदा रहा, लोकतंत्र मजबूत हुआ। और 77 में जो चुनाव हुआ उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं और संजय गांधी जी भी चुनाव हारे। तो ये लोकतंत्र की एक मजबूती, उसके लिए हमने आज कार्यक्रम किया था। ये बहुत काला अध्याय था इमरजेंसी। आपके प्रेस पे भी सेंसरशिप लगी थी, फंडामेंटल राइट्स समाप्त कर दिए गए थे। आर्टिकल 32 जिसको कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, उसको भी सस्पेंड कर दिया, समाप्त कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में 21 महीने तक देश ने बहुत कुछ झेला, सहन किया। इसलिए उसके 50 साल पूरा होने पे पूरे देश में कार्यक्रम, कलकत्ता में भी ये कार्यक्रम था। आपने जो सवाल किया कि लॉ कॉलेज में एक गैंगरेप हुआ, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন बंगाल হয়ে में जो থাকেন सरकार चल रही है, তবে আমাদের बंगाल চ্যানেলটি में, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং ये ভালো লাগলে बंगाल লাইক की ও শেয়ার सरकार করবেন। की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ये अपीचमेंट पॉलिटिक्स करती है, तुष्टीकरण की राजनीति। और उसी के कारण जो अपराधी हैं उनको समय पे सजा नहीं मिलती और अपराधियों में कोई खौफ नहीं रहता। वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, हम अपराध करेंगे, ममता जी हमें छोड़ देगी या छुड़वा देगी किसी सिस्टम के माध्यम से। इसलिए ऐसी घटनाएं होती है और बंगाल कलंकित होता है। बहुत शर्मसार ये घटना है और हमारे आज शायद आंदोलन भी है, उसके लिए पार्टी ने एक आंदोलन का कार्यक्रम भी रखा है। ममता जी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी मिलान करते हैं पश्चिम बंगाल। ये जो घटनाएं हो रही है उसका अध्ययन ममता जी को करना चाहिए ना, क्यों हो रही है। आरजी कर, अब फिर रुक क्यों नहीं रही घटनाएं, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में बिलीव करती है। उनको लगता है हमारा वोट बैंक खराब नहीं हो जाए। देश या प्रदेश ऐसे नहीं चलता है। रूल ऑफ लॉ स्थापित होने पे ही ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, ऐसे नहीं चलता। इसलिए ये घटनाएं होती है। हम इन घटना की बड़ी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और हम संसद से लेकर सड़क तक इसका आंदोलन भी करेंगे। सर, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप की कोई बारे में आप लोग सोच रहे हैं? हम करेंगे, हमने कहा ना, संसद से लेकर के सड़क तक आंदोलन करेंगे। वो जो घटना हुई, वो जो स्टूडेंट है, गैंग रेप का जो होता है ना, वो कॉलेज में ही पढ़ता है, उसका कॉलेज में ही स्टूडेंट है, और जो पढ़ता है ये टीएमसी का बड़ा लीडर है। क्या बोलेंगे? देखिए, वो कह रहे हमने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके लीपापोती से काम नहीं चलना है। ये ऐसी घटना क्यों हुई वहां कॉलेज परिसर में, इसके जो भी दोषी हैं उनको सख्त सजा मिले, वो तो है ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने पे ही बंगाल के लोग सुरक्षित रहेंगे। ये अपीचमेंट पॉलिटिक्स हम नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम संसद से लेकर के सड़क तक आंदोलन करेंगे। इधर 356 होने का टाइम हुआ, आप क्या मानता है? देखिए, 356 के भी कुछ प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। जैसे मैंने अभी 352 का उल्लेख किया, ऐसे 356 के लिए भी एक रिपोर्ट आती है गवर्नर साहब से, कुछ चीजें होती है, वो एक प्रावधान संविधान में दिया हुआ है। हाँ, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो पश्चिम बंगाल में कि एक जो आप बोल रहे थे अघोषित जरूरी व्यवस्था चल रहा था, आप बोल रहे थे। हाँ, बिल्कुल, इसमें क्या शक है। ये यहाँ कई बार अभी ये मैं इस पे बोल रहा था कि मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इमरजेंसी के कालखंड को क्यों याद कर रहे हैं, क्या हुआ ऐसा। तो हमने कहा आपको मुबारक अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो। कितने लोग जेलों में चले गए, फंडामेंटल राइट्स समाप्त कर दिए, 32 जो जुडिशियल रिव्यू पावर है वो बंद, न्यायालयों की बंद कर दी, विपक्ष के लोग सब जेल में चले गए, फिर भी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। और फिर कह रहे हैं अघोषित आपातकाल है। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, अघोषित आपातकाल बंगाल में है, यहां आकर के देखो आप।